Hello friends, in last lecture we have seen all the basic results and shortcuts of the indefinite integrations. In this lecture we will see few MCQs based on the same thing. Before moving to MCQs, let us see a property here. Integration of constant into function is equal to constant we can take outside the integration of function dx. इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई रहता है तो उसे बाहर निकालते हैं. ओके, कांस्टेंट बाहर एंड वी टेक द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स. राइट, लेट्स टेक अ सैंपल ऑन दिस. सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 into e raised to x dx. Okay, in this case 2 is constant and multiplier. We can take 2 outside the integration of e raised to x dx. ठीक है, so it is equal to 2 into e raised to x का इंटिग्रेशन e raised to x प्लस c बी द आन्सर. मित्रांनो, कॉन्स्टंट जर फंक्शनला मल्टिप्लायर असेल तर इंटिग्रेशन काढताना कॉन्स्टंटला बाहेर ठेवायचं किंवा कॉन्स्टंटला धक्का लावू नका. ते ज्याला मल्टिप्लायर आहे त्याचं इंटिग्रेशन काढायचं. ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर सैंपल रिगार्डिंग द सेम. सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx. ओके, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं. तो इंटीग्रेशन निकालते समय ये जो 12 है which is a constant and multiplier, we keep it as it is outside the integration. तो इंटीग्रेशन में कितना बचेगा? 1 upon x square dx remains. Okay, and we know that it is equal to 12 as it is. 1 upon x square का इंटीग्रेशन होता है minus 1 upon x. In the basics we have seen that 1 upon x square चे इंटीग्रेशन minus 1 upon x असते मित्रांनो, and plus c. So finally its answer will be minus 12 by x plus c. So in this way, if constant is multiplier, then we keep it outside the integration. This is the property. Now the next property, integration of fx plus or minus gx dx is equal to integration of fx plus or minus integration of gx. इसका मतलब यह है कि अगर दो फंक्शन के बीच में पॉझिटिव्ह या निगेटिव्ह साइन रहता है तो इंटिग्रेशन दोनों का अलग से निकालिए. मित्रांनो, दोन फंक्शनच्या मध्ये जर प्लस किंवा मायनस चिन्ह असेल तर दोघांचं इंटिग्रेशन हे सेपरेट काढायचं. लेट्स टेक अ सॅम्पल ऑन दिस प्रॉपर्टी. सपोज वी नीड टू फाइंड इंटिग्रेशन ऑफ a raised to x plus sin x dx. In these two terms there is positive sign. It means we can take the separate integrations. या दोघांचं सेपरेट इंटिग्रेशन आपण लिहू शकतो. a raised to x का इंटीग्रेशन होता है a raised to x डिवाइडेड बाय log a, एंड sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x. इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद प्लस c. ओके, so this is the answer. In this way, if there exists a positive या negative sign in between two terms, then we can separate the integrals. Now let us move to the MCQs based on the standard results of the integrations. First example, integration of x raised to e plus e raised to x plus e raised to e is equal to, see here, x raised to e मतलब x raised to number. x raised to number का इंटीग्रेशन है x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो x raised to e का इंटीग्रेशन होता है x raised to e plus 1 डिवाइडेड बाय e plus 1. फर्दर e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x होता है. e raised to e मतलब कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x. k का इंटीग्रेशन है kx plus c. Okay, so option A is correct. Second example, integration of 1 upon square root 1 minus x square minus cos x dx is equal to, this one is the standard rule, 1 upon root 1 minus x square. इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x, जे a आणि c मध्ये दिसायला लागला. फर्दर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x. तो बीच वाला जो माइनस है वो वैसा ही रहेगा. सो 1 upon root 1 minus x square का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, बीच का माइनस एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x. ओके, प्लस c बी द आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square plus sin x dx is equal to 1 upon 1 plus x square चे इंटीग्रेशन असतं मित्रांनो tan इनवर्स x. ओके, जो b और d में चेक करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल. sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x. ओके, माइनस cos x. सो इन दिस वे 1 upon 1 plus x square plus sin x का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x minus cos x plus c. So option D is correct. Next question, integration of e to the power log x dx is equal to, we know the laws of logarithm that e raised to log star is equal to star होता है.
सो देयरफॉर वी गेट e रेज टू log x इज इक्वल टू कितना x. सो देयरफॉर इंटिग्रेशन ऑफ e रेज टू log x चं इंटिग्रेशन, याचा अर्थ कोणाचे इंटिग्रेशन काढावं आपण, x चं इंटिग्रेशन काढावं. सो इंटिग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x का इंटिग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. सो इट इज इन ऑप्शन A. सो ऑप्शन A is correct. Next, question number 5. Integration of e raised to a log x is equal to, see here, integration of e raised to a log x. We can use laws of logarithms here. It can be written as integration of e to the power. With the help of laws of logarithms, we can shift this a to the power of x. मित्रांनो, लॉगॅरिथमच्या नियमानुसार इथला जो a आहे तो x च्या पॉवरला लिहू शकतो आपण. log x रेज टू m का मतलब होता है m इंटू log x. सो दिस वन इज द रिजल्ट. ठीक है, इस रूल का यूज करके हमने a को यहाँ पे शिफ्ट किया है. ओके, फर्दर अगेन इट इज लुकिंग लाइक e रेज टू log स्टार. देखिए, e रेज टू log स्टार इट मीन्स स्टार, तो e रेज टू log स्टार मतलब यहाँ पे कितना हुआ, x रेज टू a. सो इट इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू a, where a मतलब नंबर कांस्टेंट एंड x रेज टू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू कांस्टेंट प्लस 1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1, ओके, प्लस c. सो इन दिस वे its integration is x raised to a plus 1 upon a plus 1 plus c. It is in option C. So option C is correct. Now question number 6. Integration of e raised to x log a. Again a parallel question is there. I is equal to integration of e raised to, see here, x log a can be written as, with the help of this result, e raised to log a raised to x, isn't it? यहाँ का जो x है उसे हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स पे रिप्लेस किया है. देखिए, m log x को log x रेज टू m ऐसा लिख सकते हैं. मित्रांनो, x log a ला आपण कसं लिहू शकलो, log a रेज टू x असं लिहू शकतो. वन्स अगेन इट इज इक्वल टू, इट इज लुकिंग लाईक e रेज टू log स्टार. अगेन e रेज टू log स्टार म्हणजे स्टार असतं, तर या ठिकाणी e रेज टू log स्टार म्हणजे कोण झालं, a raised to x. So it is equal to integration of a raised to x dx. We know that it is equal to a raised to x divided by log a plus c. मित्रांनो, a raised to x इंटिग्रेशन a raised to x upon log a असं असतं. It is in option B. So option B is correct. Next question, 7th one. Integration of e raised to 2 log x plus x log 2 is equal to, again the parallel example is there. I is equal to integration of e raised to 2 log x ला कसं लिहू शकतो आपण, log x raised to 2. करेक्ट है, यहाँ का 2 जो है ना x के इंडेक्स पे रिप्लेस कीजिए, प्लस e raised to, वंस अगेन x log 2 को कैसा लिखना पड़ेगा, log 2 raised to x, ओके, dx. इट इज इक्वल टू, अगेन इट इज लुकिंग लाइक e raised to log स्टार, जिसका मतलब होता है स्टार, तो इसका मतलब कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 2 रेज टू एक्स. वी कैन सेपरेट द इंटीग्रेशंस. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन 2 रेज टू एक्स अपॉन log 2 एंड बाद में प्लस सी. सो दिस इज द आंसर, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 रेज टू एक्स अपॉन log 2 प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now let us move to the next example. 8th question. Integration of sin x upon cos square x minus cos x upon sin square x dx is equal to, एक काम करूया, it is equal to sin x divided by, ये जो cos square x है ना उसे cos x into cos x ऐसे लिखते हैं, माइनस न्यूमरेटर में है cos x, इन द डिनोमिनेटर इट इज sin square x. sin square x को हम लोग sin x into sin x ऐसा लिख सकते हैं. नाउ ऐसा ही इसे क्यों लिखने का, बराबर है कि नहीं. सो दिस वन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा. तो उसके चलते हमने क्या किया कि cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू cos x लिखा एंड sin स्क्वायर एक्स को sin x इंटू sin x. फर्दर sin x अपॉन cos x का मतलब है tan x, ये हुआ tan x. sin x अपॉन cos x मतलब tan x, एंड जो कुछ भी बचेगा 1 अपॉन cos x मतलब होता है sec x. ठीक है, माइनस एज इट इज
cos x अपॉन साइन x मतलब cot x, एंड जो रिमेनिंग 1 अपॉन साइन x है, 1 अपॉन साइन x मतलब cosec x. इन द ट्रिग्नोमेट्री वी हैव सीन दैट 1 अपॉन साइन मतलब cosec, cos अपॉन साइन मतलब cot, sin अपॉन cos मतलब tan, एंड 1 अपॉन cos मीन्स sec. ठीक है, I इज इक्वल टू sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x, बीच का माइनस एज इट इज. cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, एंड माइनस माइनस बिकम्स plus cosec x, and finally plus c. So this is the answer, sec x plus cosec x plus c. It is in option C. So option C is correct. Next example, integration of root x plus 1 upon root x is equal to, I is equal to integration of root x का मतलब है x raised to half plus we keep this 1 upon root x as it is. Now it is equal to x raised to half is looking like x raised to n, जिसका इंटीग्रेशन है x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. तो x raised to half का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x raised to half plus 1, half plus 1 मतलब 3/2. मित्रांनो, x raised to half ला x raised to n शी कंपेअर करा, ज्याचं उत्तर x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1 असं द्यायचं असतं. हाफ प्लस 1 याचा अर्थ 3/2, सो x raised to 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 असं याचं इंटीग्रेशन येणार, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, प्लस सी. सो दिस इज द आंसर, x raised to 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x plus 1 upon x square is equal to, e raised to kx का इंटीग्रेशन होता है e raised to kx अपॉन k. तो e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x अपॉन 2, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस 1 अपॉन एक्स. सो दिस इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. मित्रांनो, e raised to 2x चे इंटीग्रेशन e raised to 2x अपॉन 2 आणि 1 अपॉन एक्स स्क्वेअरचे इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स असतं. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx upon 3x plus 2 is equal to, this one is again the standard form, integration of 1 upon ax plus b dx. It is equal to log of ax plus b divided by a. Okay, with the help of this result, 1 upon 3x plus 2 का integration log of 3x plus 2 divided by 3. It is in option C. So option C is correct. Next question, integration of dx upon 16 plus x square is equal to, it is looking like the standard rule, 1 upon a square plus x square dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 by a tan inverse of x by a plus c. Okay, in this case we can write this 16 as 4 square. Okay, so the answer will be 1 by 4 tan inverse of x by 4 plus c. 1 by 4 tan inverse of x by 4 plus c. It is in option D. Now the next example, number 13, integration of dx upon 4x square plus 9. So friends, ऐसे दिखने वाला जो रूल है इंटीग्रेशन का वो ये है, इंटीग्रेशन dx upon x square plus a square, जिसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने देखा है, इट इज 1 by a tan inverse of x by a plus c. मित्रांनो, या एक्झाम्पलला असं आणण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करायचं. यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल में एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, मतलब 1 है. सो इन द एग्जांपल द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4. तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ का जो 4 है उसे हटाना होगा, इथले 4 आपल्याला काढून टाकावं लागेल. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 वी कैन टेक कॉमन हियर. मित्रांनो, या दोन टर्म मधून आपण 4 कॉमन काढायचं, सो दैट इनसाइड द ब्रैकेट, अगर यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से 4 तो कॉमन नहीं निकलता, तो उसके चलते हमें 9 by 4 ऐसा लिखना पड़ेगा. सो दैट इफ यू मल्टीप्लाई दिस 4 इनसाइड द ब्रैकेट देन इट गिव्स यू अगेन द सेम थिंग. देखिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, 4 इंटू 9 by 4, 4 4 कॅन्सल प्लस 9 रिमेन्स. कळलं मित्रांनो, 4 कॉमन काढायचं. 4 जर कॉमन काढलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहतं, एक्स स्क्वेअर प्लस 9 मधून 4 कॉमन निघत नाही, त्यामुळे लिहायचं 9 by 4. कळतंय. नाउ इट इज इक्वल टू, वी टेक दिस 1 by 4 विच इज अ कॉन्स्टेंट एंड मल्टीप्लायर आउटसाइड द इंटीग्रेशन. याला बाहेर रखलो. इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 by 4 को हमें a स्क्वायर ऐसा लिखना है,
तो 9/4 कैन बी रिटन एज 3/2 का स्क्वायर. गेटिंग क्लियर? सो दैट इट विल लुक लाइक द स्टैंडर्ड रूल. नाउ इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू इसका आंसर 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a ऐसा लिखना होता है. सो इट इज 1/a मतलब कितना है यहाँ पे? a मतलब 3/2, 1/3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a मतलब 3/2. Okay, plus c. So this is the answer. In this case 2 1s are 2, 2 2s are 4, it equal to 1 upon 3 into 2 मतलब 6 into tan inverse of inside the bracket denominator goes on numerator. हे denominator से दूर जो है ना ते numerator ला जाता. It comes 2x upon 3 and plus c. So this is the answer, 1/6 tan inverse of 2x by 3. It is in option A. So option A is correct. Next question, integration of dx upon x square minus 25 is equal to, it is looking like the standard rule 1 upon x square minus a square, जिसका इंटीग्रेशन है 1 upon 2a log of mod x minus a upon x plus a plus c. ओके, यहाँ पे जो 25 है 25 को हमें a square ऐसा लिखना पड़ेगा. तो 25 can be written as 5 square, isn't it? Now the answer will be 1/2 into a मतलब कितना 5, 2 into 5 into log of mod x minus a means 5 upon x plus a means 5 plus c. मित्रांनो, हे इंटिग्रेशन या रूल नुसार दिसतं, ज्याचं उत्तर आपल्याला यानुसार लिहायचं आहे. a स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर लिहू शकतो, इथं 5 स्क्वेअर लिहू शकतो. a म्हणजे 5 झालं, 1/2 into 5 log of mod x minus 5 upon x plus 5 असं उत्तर येतं. Finally it comes 1 by how much? 10 log of the same thing. Okay, so 1/10 log of x minus 5 upon x plus 5 be the answer. It is in option C. So option C is correct. Now the next question, integration of 1 upon x square minus 1 dx is equal to, again it is looking like the same thing, 1 upon x square minus a square. यहाँ पे जो 1 है 1 को हम लोगों को a square ऐसा लिखना पड़ेगा. In this case 1 can be written as 1 square. Okay, 1 ला कसं लिहू शकतो मित्रांनो? 1 square असं लिहू शकतो, जिसका आंसर होगा 1/2 into a मतलब कितना हुआ 1, 1/2 into 1 log of mod x minus 1 upon x plus 1 be the answer. 1/2 into 1 मतलब 2, 1/2 log of x minus 1 upon x plus 1, 1/2 log of x minus 1 upon x plus 1. It is in option A. So option A is correct. Next example, number 16, integration of 1 upon 9x square minus 16 is equal to, it is looking like the standard rule 1 upon x square minus a square. याचं उत्तर येतं 1/2a log of mod x minus a upon x plus a. इस एग्जाम्पल को ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट में लाने के लिए हमें यहाँ का जो 9 है उसे कॉमन निकालना पडेगा. मित्रांनो, इथलं 9 आपल्याला आउटसाइडला घ्यावं लागेल. वी मे राइट इट एज इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन, टू कन्वर्ट दिस एग्जाम्पल इन दिस फॉर्म वी कॅन टेक 9 कॉमन हियर, 9 कॉमन इनसाइड द ब्रॅकेट. 9 कॉमन घेतल्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये येतं है एक्स स्क्वेअर माइनस 16 में से 9 कॉमन नहीं निकलता, तो वी राइट 16/9. ओके, now it is equal to 1/9 we can take outside the integration of dx upon x square minus 16 can be written as 4/3 का square, so that it is looking like a square. इसका आंसर है 1/2a log of वगैरह वगैरह. It is equal to 1/9 into 1/2a मतलब 1/2 into a means 4/3 log of mod x minus a upon x plus a, x minus 4/3 upon x plus 4/3. So this is the answer. Okay, further we simplify this one. 3 1s are 3, 3 3s are 9. It is equal to 1/4 into 2, 8 into 3, 24 log of mod. If we multiply numerator and denominator by 3, it comes 3x minus 4 upon 3x plus 4. वर खाली 3 ने मल्टिप्लाय करायचं या ठिकाणी. इथं 3x येतं, इथला 3 कॅन्सल होतो. इट कम्स 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है. सो फाइनल आंसर विल बी 1/24 log of 3x minus 4 upon 3x plus 4. 1/24 log of 3x minus 4 upon 3x plus 4
1/24 log of 3x minus 4 upon 3x plus 4, 3x plus 4. It is not 4 here. Okay, so this answer is not in option A, B, C. So we tick mark option D, none option. Okay, correct answer is like this: 1/24 log of 3x minus 4 upon 3x plus 4. It is not in A, B, C. So we tick mark option D. Next question: integration of dx upon 4 minus x square is equal to. So friends, it is looking like the rule integration 1 upon a square minus x square is equal to. Its integration is given by 1 upon 2a log of mod a plus x upon a minus x. Okay, now in this case we can write this 4 as 2 square minus x square. So what about the integration then? It comes 1 upon 2 into a म्हणजे किती मित्रांनो इथं 2 log of mod a plus x upon a minus x म्हणजे 2 plus x upon 2 minus x. शेवटी प्लस सी असं लिहायचं. So final answer will be 1 upon 2 into 2 means 4, 1/4 log of 2 plus x upon 2 minus x. It is in option D. So option D is correct. Next question: integration dx upon 25 minus 9x square is equal to. So again it is looking like 1 upon a square minus x square. यहाँ पे जो x square है ना उसके पास कोई भी नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है. यहाँ पे कोएफिशिएंट है 9, so we can take 9 common here so that it will look like the standard rule. मित्रांनो इथून 9 कॉमन काढू. I is equal to integration dx upon, we take 9 common. If we take 9 common then inside the bracket 25 में से 9 कॉमन नहीं निकलता तो we write 25/9, बीच में माइनस एज इट इज 9 तो कॉमन लिया है, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर. ओके, नाउ इट इज इक्वल टू वी टेक 1/9 आउटसाइड द इंटिग्रेशन विच इज अ कॉन्स्टंट अँड मल्टिप्लायर, त्याला बाहेर हाकला, 1/9 ला बाहेर काढलं. 25/9 कैन बी रिटन एज 5/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. नाउ दिस इज लुकिंग लाइक द स्टैंडर्ड रूल. इसका आंसर लिखना होता है 1/2a log of वगैरह वगैरह. इट इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज 1/2a. 2a मतलब 2 into 5/3 log of mod a plus x upon a minus x मतलब 5/3 plus x upon 5/3 minus x. So this is the answer. Moreover, we can simplify this one. 3 1 is 3, 3 3 is 9, 5 2 is 10, 3 30. It comes 1/30 log of mod 5 दूनी 10 30. ओके, log mod में यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. इथं वर खाली 3 गुणू मित्रांनो. इट कम्स 5 plus 3x upon 5 minus 3x. Okay, multiplying n and d by how much? 3 here. Final answer is 1/30 log of 5 plus 3x upon 5 minus 3x. 1/30 log of 5 plus 3x upon 5 minus 3x. It is in option A. So option A is correct. Number 19, integration dx upon square root 9 minus x square. It is looking like the rule integration dx upon square root a square minus x square. This one is the standard rule जिसका आंसर होता है sin inverse of x by a plus c. You have to remember all the standard results of the integration. मित्रांनो तुम्हाला इंटिग्रेशनचे सगळे रूल्स पाठ असल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ठीक है, दिस वन इज द क्वेश्चन, दिस इज द स्टैंडर्ड रूल. यहाँ पे जो dx अपॉन स्क्वायर रूट 9 है उसे a स्क्वायर जैसा लिखना पड़ेगा, जो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज इक्वल टू हाउ मच? साइन इनवर्स ऑफ x बाय a मतलब साइन इनवर्स ऑफ x बाय 3 प्लस c. सो दिस इज द आन्सर. मित्रांनो 9 ला 3 स्क्वेअर असं लिहा, हे स्टँडर्ड रूल आहे, अप्लाय करा. x बाय a म्हणजे इथं x बाय 3 असायला पाहिजे. So sin inverse of x by 3 plus c, it is in option B. So option B is correct. Number 20, integration dx upon square root 4 minus 9x square. Once again it is looking like the standard rule. इसके जैसा इसे लाने के लिए हम लोगों को 9 ऑब्वियसली कॉमन निकालना पड़ेगा. I is equal to integration dx upon square root. मित्रांनो हे एक्झाम्पल आहे, हे त्याला पॅरलल असणारं स्टँडर्ड रूल आहे. dx अपॉन 4 मायनस 9x स्क्वेअर dx अपॉन a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, याला असं आणण्यासाठी x स्क्वेअरच्या शेजारी कुठलाही नंबर नको आहे.
एक्स स्क्वेअरच्या शेजारी 9 दिसत आहेत तर 9 आपल्याला कॉमन घ्यावं लागेल. टू रिड्यूस दिस एक्झाम्पल इन दिस फॉर्म वी टेक 9 कॉमन हियर. वी टेक 9 कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट. 9 कॉमन लेने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट 4 by 9 minus x square remains. It comes 4 by 9 minus x square. Okay. Now it is equal to root 9 मतलब 3. 1 upon root 9 मतलब 1 upon 3. We can take outside the integration. dx upon square root 4 by 9 can be written as 2 by 3 का square minus x square as it is. Now this is in the standard form. Answer is 1 by 3. 1 upon root a square minus x square sine inverse of x by a. Its answer is sine inverse of x by a मतलब 2 by 3. a मतलब 2 by 3 plus c. Okay. So finally this 3 goes to numerator. It comes 3x by 2. 1 by 3 sine inverse of 3x by 2 plus c. It is in option B. So option B is correct. Next question number 21. Integration of x plus 1 upon x square dx is equal to I is equal to integration of x plus 1 divided by x square. एक काम करते हैं डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दोनों को अलग से देते हैं यहाँ पे बाय एक्स स्क्वायर असं चालतं. ओके. सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर्स. दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. Now it is equal to integration. What is x upon x square? एक x cancel होता है. It comes 1 by x plus 1 upon x square. Keep it as it is. Bracket close dx. Now these two terms are in standard form. It is equal to 1 upon x का इंटीग्रेशन कितना है log x and 1 upon x square का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट में 1 upon x square का इंटीग्रेशन है minus 1 upon x plus c. So this is the answer log x minus 1 upon x plus c. It is in option A. So option A is correct. Now the next example integration of x square minus 1 divided by x square plus 1. या प्रकारचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असताना डिनॉमिनेटरची पूर्ण टर्म हे न्यूमरेटरला बैलेंस करायचं एडजस्ट करायचं. डिनोमिनेटर का पूरा टर्म न्यूमरेटर पे बैलेंस करना पड़ेगा ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. देखिए डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज. तो डिनोमिनेटर का पूरा टर्म न्यूमरेटर पे लिखिए. न्यूमरेटर मध्ये लिहिलं एक्स स्क्वायर प्लस 1. फर्दर सोचिए कि ये दोनों टर्म्स सेम है क्या नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. फर्दर एक्स स्क्वायर लेवल यहाँ पे -1 दिखता है. यहाँ पे हमने लिखा था +1. तो एडजस्ट ऐसा करो कि ये टोटल -1 होना चाहिए. मित्रांनो डिनॉमिनेटरची पूर्ण टर्म इथं लिहा. ॲडजस्टमेंट बरोबर आहे का नाही ते चेक करा. इथं एक्स स्क्वेअर दिसतं एक्स स्क्वेअर दिसतं. इथं -1 दिसतं. इथं आपण +1 लिहिलंय. ओके. तर इथं एक असं टर्म लिहायचं ॲडजस्टमेंटसाठी जेणेकरून या दोघांचं कॉम्बिनेशन इन दोनों टर्म का कॉम्बिनेशन -1 होना चाहिए. तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा -2 सो दॅट 1 - 2 बिकम्स -1. मित्रांनो या ठिकाणी आपण -2 ॲडजस्टमेंटसाठी लिहिलेला आहे. ओके. जेणेकरून या सगळ्याचा मीनिंग न्यूमरेटर का जो मीनिंग है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1. ठीक है. नाउ सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर्स हियर. यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बीच का माइनस एज इट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ दोनों टर्म्स कैंसिल एंड कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा. बीच का माइनस एज इट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आहे तसं राहू दे. फर्दर 1 का इंटीग्रेशन दोनों का इंटीग्रेशन निकालते हैं. 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस एज इट इज न्यूमरेटर वाला 2 एज इट इज बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट एंड मल्टीप्लायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x एंड फाइनली प्लस c. So x minus 2 tan inverse x plus c be the answer. It is in option B. So option B is correct. Let us see one more parallel example which is looking like this. Okay, integration. Suppose it is like this x square plus 2 divided by x square plus 1 dx. ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. क्या करेंगे पूरा डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर पे बैलेंस करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे x square plus 1. ओके एंड एडजस्टमेंट करते हैं. फिर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर यहाँ पे +1 है यहाँ पे +2 है. तो क्या करना पड़ेगा
एक और +1 करने के बाद ॲडजस्टमेंट पूरा हो जाएगा. 1 + 1 मतलब 2. कळतंय मित्रांनो. डिनॉमिनेटरची पूर्ण टर्म वर लिहायचं आणि मग बॅलन्स करायचं. x² ला x² दिसतं, इथं 2 आहे, इथं 1 होतं, आणखीन एक +1 लिहिलं की 2 होत आहे. कळतंय. नाव सेपरेटिंग द डिनॉमिनेटर्स. आता डिनॉमिनेटर सेपरेट करू. x² + 1 डिवायडेड बाय x² + 1 अँड प्लस 1 / x² + 1. दोन्हीचं डिनॉमिनेटर सेपरेट केलं dx. नाउ these two terms get cancelled. इंटीग्रेशन में बचेगा 1 प्लस 1 / x² + 1. नाउ द आंसर इट इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अँड फायनली प्लस c. सो दिस इज द आन्सर. यानुसार आपल्याला इंटिग्रेशन बाय ॲडजस्टमेंट सोडवायचं असतं. नाउ लेट अस मूव टू दी नंबर 23. अगेन द पॅरलल एक्झाम्पल आहे पहा ॲडजस्टमेंट सारखं. इंटिग्रेशन x + 1 / x - 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर का पूरा टर्म न्यूमरेटर पे बैलेंस करते हैं. यहाँ पे है x - 1, न्यूमरेटर में लिखेंगे x - 1 एंड देन वी थिंक अबाउट दी ॲडजस्टमेंट. x ला x लेवल झालं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे है +1. ओके, सो इन एनी हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस न्यूमरेटर एज x + 1. फॉर दॅट वी राईट हिअर +2. त्याकरता आपल्याला इथं +2 लिहावं लागतं, जेणेकरून 2 - 1 ये बन जाएगा +1. करते हैं मित्रांनो, समझे आप लोग. x को x लेवल हुआ, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 था, तो +1 आने के लिए हमें क्या करना पड़ा, +2 करना पड़ा. सो दैट 2 and -1 becomes +1. ओके, नाउ इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं. x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 एंड प्लस 2 / x - 1 ब्रैकेट क्लोज dx. इट इज इक्वल टू x - 1 गेट कैंसिल. इंटीग्रेशन ऑफ दोनों टर्म्स कैंसिल मतलब 1 प्लस 2 / x - 1 ब्रैकेट क्लोज dx. नाउ फाइनल आंसर 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस 2 को धक्का मत लगाइए. 1 / x - 1 का इंटीग्रेशन log of x - 1 प्लस c. सो फ्रेंड्स 1 / x का इंटीग्रेशन log x होता है. 1 / x प्लस कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन log of x प्लस कॉन्स्टेंट प्लस c. x plus 2 into log of x - 1 plus c be the answer. It is in option C. So option C is correct. Now let us see few examples based on trigonometric results. Integration of sin square x dx is equal to number 24. Integration of, look here, there is a result in trigonometry that sin square theta is equal to 1 - cos 2 theta upon 2. मित्रांनो साइन स्क्वेअर थिटाची किंमत 1 - cos 2 theta upon 2 असं असतं. तो साइन स्क्वेयर x को हम लोगों को 1 - cos 2x upon 2 ऐसा लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए. ओके, बिकॉज इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. साइन x का इंटीग्रेशन मालूम है, इट इज -cos x, बट साइन स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें साइन स्क्वेअर थिटा के रूल का इस्तेमाल करना पडेगा. मित्रांनो साइन एक्सचं इंटिग्रेशन आपल्याला पाठ आहे जे -cos x असतं, परंतु साइन स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन हे स्टँडर्ड रूलमध्ये नाही आहे. साइन स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन काढण्यासाठी आपल्याला साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 theta upon 2 या रूलचा वापर करावा लागता है. साइन स्क्वेअर एक्स का मतलब 1 - cos 2x upon 2. नाउ द आंसर I इज इक्वल टू, हे जे अपॉन 2 है कि नहीं, ये वाला अपॉन 2 बाहर निकालते हैं. 1/2 taken outside the integration. Now inside the bracket 1 का इंटीग्रेशन है x माइनस एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2. ओके मित्रांनो, हे जे डिवायडेड बाय 2 आहे ना, याला आपण आउटसाइडला घेतलेलं आहे 1/2 म्हणून. न्यूमरेटरचं इंटिग्रेशन या ठिकाणी लिहायचं. 1चं इंटिग्रेशन x मधला माइनस एज इट इज cos 2x इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 plus c. So final answer is half into x minus sin 2x upon 2. It is in option C. So option C is correct. Now let us take two more examples based on the same result. Sin square 2x का इंटीग्रेशन number 26. Sin square 2x भी sin square थीटा जैसा दिखता है.
So friends, we replace theta by 2x. It becomes 1 minus cos 2 into 2x मतलब 4x divided by 2. या ठिकाणी थीटाच्या ऐवजी जर 2x ठेवलात तर साइन स्क्वेअर 2x ची किंमत 1 मायनस कॉस 4x अपॉन 2 असं येईल. सो नंबर 26 I becomes इंटिग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 ओके dx. इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा. ठीक है. नाउ द आंसर इट इज इक्वल टू वी टेक बाय 2 आउटसाइड द इंटीग्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखते हैं. 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड बाद में प्लस c. सो दिस इज द आंसर. इट इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. One more parallel example is there. Number 28. Integration of sine square x by 2 dx is equal to. In this result, we replace theta by how much? X by 2. 1 minus cos 2 into x by 2. 1 minus cos 2 into x by 2 by 2. यानुसार ते रूल तयार होईल. सो साइन स्क्वेअर x by 2 की व्हॅल्यू 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बाय 2 मतलब 2 टू गेट कैंसिल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2. इसका इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा. इट इज इक्वल टू वंस अगेन वी टेक अपॉन 2 आउटसाइड द इंटीग्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन है x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स. गेटिंग क्लियर. सो दिस इज द आंसर. हाफ इंटू ब्रैकेट x माइनस साइन एक्स प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन डी. देखिए हाफ को अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया जाए तो हाफ एक्स माइनस हाफ साइन एक्स, हाफ एक्स माइनस हाफ साइन एक्स प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25. इंटिग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वेअर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू. मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला कॉस स्क्वेअर थीटाचं रूल वापरावं लागेल जे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 असं असतं. तो इसका इस्तेमाल करके कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? इट कम्स 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. ओके. यूजिंग द रिजल्ट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वी रिप्लेस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. नाउ द आंसर इट इज इक्वल टू वी टेक 1 बाय 2 आउटसाइड इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2. सो दिस इज द आंसर. हाफ इंटू x प्लस sin 2x upon 2. It is in option A. So option A is correct. Two more questions are there based on the same result. Question number 27. इंटीग्रेशन ऑफ cos square 2x. देखिए cos square 2x का मतलब होता है cos square थीटा का मतलब 1 plus cos 2 theta upon 2. तो cos square 2x means what? It comes 1 plus cos 2 into 2x means 4x upon 2. So its integration is given by integration of 1 plus cos 4x upon 2. It is equal to we take upon 2 outside inside the bracket 1 plus cos 4x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x plus cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x upon 4 plus c. So this is the answer. Half into x plus sin 4x upon 4. It is in option C. So option C is correct. Next question parallel question है number 29. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 थीटा की वैल्यू एक्स बाय 2 रखने के बाद यहाँ पे आएगा एक्स बाय 2 एंड इन दिस केस ऑल्सो एक्स बाय 2. 2 and 2 गेट कैंसल. रिजल्ट विल बी 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2. इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन निकालते हैं. इट इज इक्वल टू वी टेक बाय 2 आउटसाइड. इंटीग्रेशन में कितना बचेगा? 1 प्लस cos x okay dx. So final answer will be it is half inside the bracket 1 का integration x plus cos x का integration sin x plus c. If we multiply half inside the bracket it comes half x plus sin x by 2. It is in option B. So option B is correct. मित्रांनो 1 by 2 आत मल्टिप्लाय केलं की हे येतं x by 2 plus sin x upon 2 जे ऑप्शन बी मध्ये आहे. अगला सवाल देखिए नंबर 30. I is equal to integration of square root 1 plus cos 2x is equal to. मित्रांनो 1 plus cos 2 थीटाची किंमत 2 cos स्क्वेअर थीटा असतं. ट्रिग्नोमेट्रीचं हे रिझल्ट आहे. ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है. 1 plus cos 2 थीटा मतलब 2 cos स्क्वेअर थीटा. तो 1 plus cos 2x मतलब
2 cos square x, okay, dx. Now it is equal to, we take root 2 outside the integration. रूट 2 इंटीग्रेशनच्या बाहेर काढा. इंटीग्रेशन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल. यहाँ पे जो स्क्वायर है और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली cos x dx. इट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस c. सो दिस इज आंसर, रूट 2 sin x प्लस c. इट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वेअर रूट 1 मायनस कॉस 2x dx इज इक्वल टू. हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला 1 मायनस कॉस 2 थिटाच्या रूलचा वापर करावा लागणार आहे. सो 1 मायनस कॉस 2 थीटा is given by 2 sin square theta. The value of 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So with the help of this result, 1 minus cos 2x can be written as 2 sin square x dx. ठीक है. Now it is equal to, we take root 2 outside the integration and integration में कितना बचेगा, square and square root get cancel, तो साइन एक्स बचेगा. ठीक है. इट इज इक्वल टू रूट 2 एज इट इज, रूट 2 एज इट इज, साइन एक्स का इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स. मित्रांनो साइन एक्स इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स असतं. सो फायनल आन्सर इज मायनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी. मायनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ लुक एट द नंबर 32. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx upon sin square x into cos square x, sin square x into cos square x. ओके, न्यूमरेटर में जो 1 है ना उसे sin square x प्लस cos square x ऐसा लिखते हैं. मित्रांनो न्यूमरेटरला जे 1 आहे त्याला आपण sin square x प्लस cos square x असं लिहूयात. कारण आपल्याला रिझल्ट माहित आहे की cos square थीटा प्लस sin square थीटा इज इक्वल टू किती असतं, 1 असता है. ठीक है. सो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए विच इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो न्यूमरेटर में जो 1 है उसे हम लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसा लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ लेट अस सेपरेट द डिनोमिनेटर्स हियर. अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं. इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos square x upon sin square x into cos square x, cos square x upon sin square x into cos square x. Okay, separating the denominators. Now it is equal to sin square x get cancel, यहाँ पे cos square x cancel होता है. देखिए 1 upon cos square x, 1 upon cos मतलब sec, 1 upon cos square x मतलब sec square x प्लस 1 upon sin मतलब cosec, 1 upon sin square x मतलब कोसेक स्क्वेअर एक्स. नाव दिस इज इन द स्टँडर्ड फॉर्म. मित्रांनो आता जाऊन हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलं. इट इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर एक्सचा इंटिग्रेशन टेबलमध्ये तुम्ही पाठ केलाय. इट इज tan एक्स एंड कोसेक स्क्वेअर एक्स का इंटिग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी. मित्रांनो सेक स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन tan एक्स, कोसेक स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यानुसार उत्तर येतं आहे tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now the next question, number 33. In this case also we are going to use the trigonometric results here. Integration of square root of 1 plus sin 2x. मित्रांनो हे एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी आपल्याला हे जे 1 आहे ना 1, त्या 1 ला sin square x प्लस cos square x यानुसार लिहावं लागेल. आणि इथं जे sin 2x आहे त्या sin 2x च्या बद्दल 2 sin x इंटू कॉस एक्स यानुसार लिहावं लगेल. ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स है उसमें से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे जो साइन 2x है ना, साइन 2x, द वैल्यू ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, इसका भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. देखिए 1 कैन बी रिप्लेस्ड एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है. and sin 2x can be replaced as plus 2 sin x into cos x. Okay, now it is equal to integration of, now look at this term carefully, it is looking like a square plus 2ab plus b square, isn't it? मित्रांनो हे
ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर यानुसार दिसतं का? दिसतं. देखिए ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. getting clear? इट इज इक्वल टू, इट इज a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर है. ओके, सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, dx. नाउ इट इक्वल टू इंटीग्रेशन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल. इट कम्स सिंपली cos x प्लस साइन एक्स. नाउ द आंसर इट इज इक्वल टू cos x से इंटीग्रेशन असतं साइन एक्स and sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, फाइनली प्लस c. सो दिस इज द आंसर, sin x minus cos x plus c. It is in option B. So option B is correct. Now next question number 34, integration of dx upon 1 plus cos 2x. So friends, recently we have seen the result that 1 plus cos 2x का मतलब होता है 2 cos square x. Okay, 1 plus cos 2x म्हणजे 2 cos square x. Now it is equal to, we take this 1 upon 2 outside, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस म्हणजे काय असतं? सेक. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब कितना हुआ? सेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, dx. इट इज इन द स्टैंडर्ड रूल. इट इक्वल टू हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x प्लस सी. सो दिस इज द इंटीग्रेशन, हाफ इंटू tan x प्लस सी. इट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next one, integration of dx upon 1 minus cos 2x is equal to, again the parallel example is there. In this case we are going to use the result of 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So 1 minus cos 2x becomes 2 sin square x. Okay, now it equal to half, we take outside the integration. Integration मध्ये काय येतं? 1 upon sin means cosec 1 upon sin square मतलब cosec square x dx. Now the answer it equal to half into cosec square x का इंटीग्रेशन है minus cot x plus c. So this is the answer, minus half cot x plus c. It is in option B. So option B is correct. Now number 36, question is integration of square root 1 plus cos 2x upon 1 minus cos 2x. 1 plus cos 2x means 2 cos square x divided by 1 minus cos 2x मतलब 2 sin square x. Okay, now it is equal to integration square root 2 get cancel, cos square upon sin square. Cos upon sin means cot, it comes cot square x dx. So square and square root get cancel, it comes integration of simply cot x dx, and integration of cot x is log of sin x प्लस सी. मित्रांनो cot x इंटिग्रेशन हे log sin x प्लस सी यानुसार असतं. इट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर 37, parallel question is that integration of root 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. Okay, 1 minus cos 2x म्हणजे 2 sin square x divided by 1 plus cos 2x मतलब 2 cos square x. ठीक है, इट इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 गेट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, साइन एक्स अपॉन cos x मतलब tan x. ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x प्लस c. tan x इंटीग्रेशन log sec x प्लस c असं येतं. तर log sec x इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next one, integration of sec square x degree is equal to, look, sec square x degree का मतलब होता है x pi by 180. Okay, dx. We all know that 180 degree is equal to pi radians. Okay, so 1 degree is equal to pi by 180. दोन्हीकडे x ने मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कीजिए, x डिग्री बिकम्स x पाई बाय 180. ठीक है, सो सेक स्क्वायर x डिग्री का मतलब हुआ सेक स्क्वायर ऑफ x पाई बाय 180. इट इज इक्वल टू, इट इज लुकिंग लाइक सेक स्क्वायर kx. देखिए सेक स्क्वायर kx चं इंटिग्रेशन असतं tan kx अपॉन k. ओके,
तो sec स्क्वायर x पाई बाय 180 का इंटीग्रेशन होना चाहिए tan ऑफ x पाय बाय 180 डिवायडेड बाय पाय बाय 180. तर यानुसार त्याचं आन्सर येत आहे. इट कम्स अगेन x पाय बाय 180 मतलब x डिग्री tan x डिग्री and divided by pi by 180. 180 goes to numerator. It comes 180 upon pi like this, 180 upon pi and tan x degree. Okay, so this is in option D. Option D is correct. मित्रांनो काही नाही, x डिग्री याचा अर्थ x पाय बाय 180 सेक स्क्वेअर के एक्स सारखं दिसतं हे. तर सेक स्क्वेअर के एक्सचं इंटिग्रेशन टॅन के एक्स अपॉन के असं लिहायचं असतं. या केसमध्ये के म्हणजे कोण झालं, पाय बाय 180. तर टॅन पाय बाय 180 एक्स अपॉन पाय बाय 180 असं उत्तर येतं. सो इट इज 180 गोज टू न्यूमरेटर, 180 वरती जातं, 180 अपॉन पाय टॅन एक्स डिग्री, एक्स पाय बाय 180 म्हणजे परत एक्स डिग्री असं लिहायचं. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 39. इंटिग्रेशन ऑफ cos 5x into sin 3x dx is equal to. In this case, we are going to use here the formula of cos A sin B is equal to. In last semester trigonometry topic, we have seen factorization and defactorization results. So cos A sin B is given by half into bracket sin of A plus B minus sin of A minus B for this cos A sin B. Okay, so we are going to apply this rule here. Cos A sin B is equal to like this. तो cos A मतलब 5x, sin B मतलब 3x, half into bracket, it comes half into bracket sin of A plus B मतलब 5x plus 3x, it comes 8x minus sin of A minus B, sin of A minus B means 5x minus 3x, it comes 2x. ओके, dx. मित्रांनो, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला या ट्रिग्नॉमेट्रीच्या रूलचा वापर करावा लागते, जे आपल्याला पाठ पाहिजे. कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू यानुसार असतं. इन दिस केस ए म्हणजे 5x, बी म्हणजे 3x अप्लाय केलं. नाव द आन्सर आय इज इक्वल टू, वी टेक हाफ आउटसाइड द इंटिग्रेशन ब्रॅकेटमध्ये, साइन 8x का इंटिग्रेशन, इट इज मायनस cos 8x upon 8 minus as it is sin 2x का integration, it comes minus cos 2x upon 2 and finally plus c. So final answer will be like this, or if you multiply half inside the bracket, it comes minus 1 by 16, 8 into 2 16 cos 8x and plus cos 2x divided by 2 into 2 4 plus c. Okay, either this one or this one, you check in the options here. minus 1 upon 16, देखिए minus 1 upon 16 cos 8x plus 1 by 4 cos 2x, minus 1 by 16 cos 8x plus 1 by 4 cos 2x. It is in option A. So option A is correct. Now let us see the last example of this session, number 40. Integration of sin x into cos x dx is equal to. Friends, we know that the value of sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. From this, we shift this 2 to the left hand side, comes half into sin 2x is equal to sin x into cos x. मित्रांनो, sin 2x ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, 2 sin x cos x असतं. यावरून हे जे 2 आहे ते डावीकडे पाठवा, इट कम्स 1 by 2 sin 2x is equal to sin x into cos x. In this case, integration of sin x into cos x is equivalent to integration of half into sin 2x. We write here half into sin 2x dx. ठीक है, it is equal to half as it is sin 2x integration. Integration of sin 2x is minus cos 2x divided by 2 plus c. So this is the answer, minus 1 by 4 cos 2x. Okay, it is in option D, minus 1 by 4 cos 2x, option D. So option D is correct. So friends, in this way you can solve the parallel examples based on the standard results of the integrations. In the next lecture we will see integration by substitutions. Thank you.